Hello, dear children. Hope you all are good and doing well at your home. Myself, Diksha Rai. This is your subject teacher of science from LPM Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. So now, in this video, I am back with the new chapter number 13, that is the sun, moon, and stars. So first, what will we do? First, we will get to read this chapter with the correct pronunciation and meaning. So now let's start the chapter, and the name of the chapter is that the sun, moon, and stars. So now in this chapter we will learn about sun and the solar system, moon and its phases, stars and constellations. So now you must have seen the sky at night. आप अवश्य रात के समय आसमान में देखते होंगे. वी डू नॉट सी द सन, और हमें उस समय आसमान में जो सन है वो दिखाई नहीं देता है. द नाइट स्काई इज़ फुल ऑफ स्टार्स, और रात के समय जो आसमान होता है वो तारों से भरा हुआ होता है. दे फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स एंड शेप्स इन द स्काई, और उन्हें हम किस रूप में देखते हैं? अलग अलग शेप्स में, अलग अलग आकार में, अलग अलग पैटर्न्स में वो हमें स्काई में दिखाई देते हैं. ज्वाइन द डॉट्स टू मेक पैटर्न्स ऑफ स्टार्स सीन इन द स्काई. सो नाउ we will discuss about, have you seen groups of stars in the sky? Yes. Stars look like tiny dots of light in the sky because they are very small, they are very far from us, they are bright and very far away from us. None of this. So now, as you know, they are bright and very far away from us. So now we are going to discuss about the first topic from the chapter, is that the sun and the solar system. What is the first topic? The sun and the solar system. The sun is a huge ball of fire which gives us heat and light. The earth moves around the sun. The earth is planet. The sun is a huge ball of fire. So my dear students, as you know very well, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सन है, सूर्य है, ये क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ फायर, ये एक विशाल आग का गोला है. विच गिव्स अस हीट एंड लाइट, जो हमें क्या देता है? हीट, गर्मी और प्रकाश. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और जो पृथ्वी है वो क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है. द अर्थ इज़ अ प्लैनेट, और पृथ्वी भी, अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है, ग्रह है. A planet. Now we will discuss about a planet. Do you know that what is planet? So my dear students, as you know very well, in your subject of SST, your SST teacher Sonali Pandey have you already taught about a planet, sun, moon and stars. But still we will discuss about a planet. A planet is a round object that moves around the sun in a fixed path called orbit. The sun and 8 planets are part of the solar system. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. A planet is a round object that moves around the sun in a fixed path called orbit. A planet is a round object. प्लैनेट जो है बेटा, ग्रह जो है वो क्या है? एक अराउंड ऑब्जेक्ट है. दैट मूव्स, जो क्या करती है? चक्कर लगाती है. द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, सूर्य के एक निश्चित पाथ पे, रास्ते पे वो क्या करती है? चक्कर लगाती है. और वो गोल, उनका उसका जो आकार है वो गोल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं. द सन एंड 8 प्लैनेट्स आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. द सन, सूर्य, और जो 8 प्लैनेट है, जो 8 ग्रह है, वो क्या है? सोलर सिस्टम का भाग है. द 8 प्लैनेट्स, तो आप जानते हैं कि जो 8 प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट इज दैट मर्क्यूरी, नंबर सेकंड वेनस, नंबर थर्ड अर्थ, एंड नंबर फोर्थ मार्स, नंबर फिफ्थ जुपिटर, नेक्स्ट सैटर्न एंड यूरेनस, एंड द लास्ट वन नेपट्यून. So now planets do not have any light of their own.
जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनके पास उनका खुद का कोई स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑफ देम. क्या होता है? दे रिफ्लेक्ट द लाइट, वो प्रकाश को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं. ऑफ द सन, सूर्य के. दैट फॉल्स ऑन देम, जब सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं तो वो उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं. द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. अब जैसे कि सन है और सन के पाथ से जो प्लैनेट शुरू होते हैं, थर्ड नंबर पे कौन सा प्लैनेट है? अर्थ है. इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट. और यही केवल एकमात्र पाया जाने वाला ऐसा ग्रह है जिस पे क्या है? जीवन संभव है. और वो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लैनेट? अर्थ. सो नाउ as you can see on your page, this is sun, and planet number first Mercury, number second Venus, number third Earth, number fourth Mars, number fifth Jupiter, number six Saturn, number seventh Uranus, and number eighth Neptune. So my dear students, you will draw a diagram of planets on your PC. When your school will reopen, I will check your PC. And now we will discuss about moon. The moon is our closest neighbor in the sky. Just as the earth moves around the sun, the moon moves around the earth. The moon is also called the earth satellite. The moon is our closest neighbor in the sky. आसमान में जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट, जो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी होता है, वो कौन है? मून है. जस्ट एज द अर्थ, और जिस प्रकार से अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार से द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. जो मून है वो किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के, अर्थ के. द मून इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ सैटेलाइट. और मून को हम अर्थ सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं. द मून इज़ आवर क्लोजेस्ट नेबर इन द स्काई. आसमान में हमारा सबसे करीबी, सबसे नज़दीकी पड़ोसी जो है वो है मून. और जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार से मून भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है. और इस रीज़न से, इस कारण से जो मून है उसे हम अर्थ सैटेलाइट के नेम से भी जानते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट अ सैटेलाइट. अ सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट. देखिए, सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वस्तु है जो क्या करती है? चक्कर लगाती है प्लैनेट के चारों तरफ. जो ग्रह है, 8 ग्रह हैं, उनके चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगाती है. लाइक आवर अर्थ, जैसे कि हमारी पृथ्वी. अदर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव सैटेलाइट. और जो अदर दूसरे ग्रह हैं उनके पास सैटेलाइट होती है. पिक्चर्स ऑफ द मून शो दैट इट हैज़ माउंटेन्स. और जो मून की पिक्चर्स होती हैं, मून का जो ये पिक्चर होता है उसमें आपको शो करता है, ऐसा दर्शाया जाता है कि जैसे उसके अंदर माउंटेन्स, पर्वत हैं. देयर आर ऑल्सो ह्यूज होल्स ऑन द मून. और मून के अंदर एक विशाल होल है. दिस होल्स आर कॉल्ड क्रेटर्स. और इन्हीं होल्स को हम क्या कहते हैं? क्रेटर्स बोलते हैं. देयर इज़ नो एयर ऑन द मून. और मून पे किसी प्रकार की हवा, एयर नहीं होती है. द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. और मून के पास अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. और ये सूर्य की रोशनी से ही क्या करता है? रिफ्लेक्ट होता है. Phases of the moon. Now we will discuss about phases of the moon. The shape of the moon seems to change every night. मून का जो आकार होता है, चंद्रमा का जो आकार होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रत्येक रात्रि में बदलता रहता है. हर रोज़ रात में आपको मून का जो शेप है वो अलग अलग दिखाई देगा. द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. अब देखिए बेटा, जो ये मून के डिफरेंट अलग अलग प्रकार के फेजेस, शेप्स होते हैं, अलग अलग आपको शेप्स जो दिखाई देंगे, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून कहते हैं. एज द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ. और जैसे ही
चंद्रमा क्या करता है, रोटेट करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। तो उसके अलग अलग जो भाग हैं वो आपको दिखाई देंगे। दिस इज़ द रीज़न फॉर द फेजेस ऑफ द मून, और यही कारण है जिसके रीज़न से हमें चंद्रमा हर रोज़ रात में अलग अलग आकार का दिखाई देगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मून चेंजेस फ्रॉम अ न्यू मून which can hardly be seen to a full moon and then back to the new moon in about 29 days. Now we will discuss about stars. Like the sun, stars are also huge balls of fire. जिस प्रकार से सूर्य विशाल आग का गोला है, बड़े से आग का गोला है, वैसे ही जो स्टार्स हैं, जो सितारे तारे हैं, वो भी क्या है, ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर हैं। दे अपीयर एज टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वो आपको छोटे छोटे टाइनी डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, और जो सूर्य है वो भी एक प्रकार का, वो भी एक स्टार ही है। इट इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ, और ये जो स्टार है ये पृथ्वी के सबसे करीब, सबसे नज़दीक पाया जाता है। टू लुक एट द मून एंड द स्टार्स इन द नाइट स्काई, आप क्या करें, रात के समय में स्टार्स को देखें, मून को देखें आसमान में। वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द टेलीस्कोप, आसमान में स्टार्स को, मून को देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस यंत्र का यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। अ टेलीस्कोप हेल्प अस टू सी फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज द स्टार्स, जो टेलीस्कोप होती हैं वो हमें देखने में सहायता करती हैं दूर रखी हुई वस्तुओं को, जैसे कि स्टार्स, मून, ये प्लैनेट्स, ये क्या है, हमसे बहुत दूर हैं। और अगर हमें इन्हें देखना है तो हम किसकी सहायता से देखेंगे, टेलीस्कोप की सहायता से। जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम दूर रखी हुई चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि स्टार, मून, प्लैनेट, उसे हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। सो नाउ know your scientist. Hans Lippershey was a Dutch who is believed to have invented the telescope. Lippershey used lenses to make his basic telescope and called his invention a Kiesker, meaning looker. In Dutch, Lippershey was the first person to describe what a telescope is in his writings. Some stars appear to form a pattern or shape in the sky. Such patterns formed by a group of stars are called constellations. Some stars appear to form a pattern or shape in the sky. कुछ जो तारे होते हैं बेटा वो आसमान में प्रदर्शित होते हैं, या तो वो किसी आकार में या फिर पैटर्न है। जब स्काई में, आसमान में स्टार्स जो हैं वो किसी न किसी शेप में, किसी न किसी पैटर्न में होते ही हैं। और इस ये जो पैटर्न, सच पैटर्न्स, और इस प्रकार का जो पैटर्न पाया जाता है, और ग्रुप ऑफ स्टार्स को, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। द ग्रेट बियर एंड ओरियन द हंटर आर टू कॉन्स्टेलेशन यू शुड ईजिली आइडेंटिफाई इन द स्काई। देखिए जो दो ग्रुप हैं स्टार्स के वो कौन कौन से हैं, पहला है ग्रेट बियर और सेकंड है ओरियन। और अगर आप इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी पूर्वक इन्हें आसमान में क्या करेंगे, पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैन यू स्पॉट एनी ऑफ दिस इन द नाइट स्काई? Now we will discuss about astronomers. Astronomers are people who study the object in the sky. They have identified many constellations some 1500 years ago. An Indian astronomer Aryabhat explained that the earth is round and rotates on its axis. He also said that the moon has no light of its own but shines when lit by sunlight. Bhaskar and Varamira
were two other great Indian astronomers of ancient India, Galileo, an Italian, and Johannes Kepler, a German, are other famous astronomers. So now we will discuss about astronomer. Do you know that what is astronomer? एस्ट्रोनॉमर्स आर पीपल, एस्ट्रोनॉमर्स वो लोग होते वे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आसमान में और आसमान में उपस्थित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे रिलेटेड उससे संबंधित जो स्टडी करते हैं उन्हें ही हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं. दे हैव आइडेंटिफाइड मेनी कॉन्स्टलेशंस, और वे क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टलेशंस को पहचानते हैं, उन्हें पहचानने में सहायता करते हैं. अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. सम 1500 ईयर्स एगो, लगभग 15 साल पहले, एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर, एक भारतीय एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने एक्सप्लेन द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. उन्होंने ही व्याख्या किया, उन्होंने ही बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक एक्सिस में चक्कर लगाती है. ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा दैट द मून हैज़ नो लाइट, कि चंद्रमा के पास खुद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, बट शाइन्स व्हेन लिट बाय सनलाइट, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, चमकता है किसके द्वारा, सनलाइट, सूर्य की रोशनी के द्वारा. भास्कर एंड वरमहिरा वर टू अदर ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत पुराने समय में भास्कर और वरमहिरा नाम के दो एस्ट्रोनॉमर्स और भी थे जो कहाँ से संबंध रखते थे, भारत से. गैलीलियो नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे जो कहाँ के थे, इटालियन. जॉनस केपलर नेम के एक और एस्ट्रोनॉमर थे जो जर्मन के थे. ये और भी बहुत सारे प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर हैं जिनके बारे में हम आगे चल के क्लास 4th में पढ़ेंगे. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट keywords. Planets. Planets are round objects that move round the sun in a fixed path called orbit. Now, astronomers, people who study objects in the sky, are called astronomer. Now, we will discuss about constellations. Patterns formed by a group of stars in the sky are called constellations. Now, we will discuss about telescope. An instrument that helps us to see far off object is called a telescope. From this keywords, your chapter has completed, and I hope you will revise the chapter in a very well way with the correct pronunciation and meaning. And I will send your teaching note from your chapter number 13 on your Apple icon group. So, my dear students, you will write the keywords and important points in your PC and homework copy. When your school will reopen, I will check your work.